Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss one more important sonnet written by Philip Sidney under title Loving in Truth. क्या गवाही दे अपनी मोहब्बत की, क्या गवाही दे अपनी मोहब्बत की, हर सांस में हम इकरार करते हैं। क्या गवाही दे अपनी मोहब्बत की, हर एक सांस में हम इकरार करते हैं। कुफ्र है पर गुस्ताखी माफ हो, हम खुदा से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। अपने सच्चे प्यार को बयां करने के लिए कविता के माध्यम से कैसे फिलिप सिडनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का ताना बाना इस सोनेट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। Loving in truth is an effort by Philip Sidney to express his emotions, his sincere love towards his lover, toward his beloved. Sir Philip Sidney was an English poet, courtier, scholar, and soldier who is remembered as one of the most prominent figures of the Elizabethan age. जिस सॉनेटियर की हम बात कर रहे हैं वो फिलिप सिडनी एलिजाबेथन एज के सबसे बड़े कवियों में उनका नाम शुमार है। और सिर्फ कवि नहीं बल्कि एक इंग्लिश पोएट के रूप में, कोर्टियर के रूप में, दरबारी के रूप में, एक स्कॉलर, एक सोल्जर, अधिकारी के रूप में, सैनिक के रूप में भी इतिहास उनको जानता है। एंड हिज वर्क्स इंक्लूड अ सोनेट सीक्वेंस, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, अ ट्रीटीज, द डिफेंस ऑफ द पोएजी and a pastoral romance, the Countess of the Pembroke's Arcadia. इस इन अलग अलग राइटिंग्स के लिए फिलिप सिडनी को दुनिया जानती है। Let us try to understand his sonnet, what he wants to convince the readers. अपने इस सोनेट के माध्यम से वो अपनी प्यार को जाहिर करने का, अपने सिंसियर भावनाओं को, अपने सच्चे प्यार को बयां करने का एक प्रयास कर रहे हैं। And he is trying to convince his beloved Penelope Devereux that his sincere feelings he is trying to convey through the poem, through the sonnet. यहाँ से सोनेट की शुरुआत होती है। Loving in truth, the poet's love for his beloved Penelope Devereux is pure and true. Loving in truth का मतलब होता है Penelope Devereux जो beloved है फिलिप सिडनी की, उनके प्रति जो उनका प्यार है वो सच्चा है। And feign in verse my love to show, and he is trying to express his love through his verse, अपनी पोएट्री के माध्यम से, अपनी पोएम के माध्यम से वो अपनी प्यार को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। फेन का मतलब यहाँ पर नॉट स्ट्रॉन्ग और क्लियर। ये तो चाहते हैं पर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। His beloved has not answered yet, and so he wants to express his feeling of love in his poetry, and therefore he is trying to convey his love through this poetry, that she, dear she, might take some pleasure of my pen. वो बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो तो उनसे प्यार करते ही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द पोएट थिंक्स दैट हिज एफर्ट्स, उनके जो प्रयास है बताने के, उसमें तकलीफ तो है, दर्द तो है, एंड दिस पेन टू विन सम फेवर ऑफ हिज बिलीव्ड माइट गिव हर प्लेजर। अपनी महबूबा को अपनी बात को समझाने का जो प्रयास है, हो सकता है कि ये जो तकलीफें वो झेल रहे हैं उससे डेवरक्स, पेनेलोप डेवरक्स को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए, उसको खुशी मिले। He also hopes that she might want to read his verse out of the pleasure she takes in his pen. अपनी बात को, अपने दर्द को बयां करने के लिए वो कविता के माध्यम से जो भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है that Penelope Devereux some other time will go through this verse and will take pleasure. आज नहीं तो कल इस पोएम को पढ़ेगी, उसे खुशी मिलेगी और मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगी। Loving in truth, I love you sincerely, honestly, and fain in verse my love to show. And this is clear that his lover has not answered yet to his feelings and emotions, and therefore that she, dear she, might take some pleasure of my pain. The poet feels
he is assured that whatever the efforts he is doing, the beloved may take some pleasure while reading these lines, this poem. आगे वो कहते हैं pleasure might cause her read. हो सकता है खुशी मिले उससे, and this will compel her to read my lines, and reading might make her know knowledge might pity win, and pity grace obtain. This poem, this effort will help her to read my emotions, my feelings. The poet hopes that she might want to read his poem out of the pleasure. हो सकता है कि खुशी मिलने के लिए, खुशी को हासिल करने के लिए कभी न कभी तो इस पंक्तियों को वो पढ़ेगी, एंड शी टेक्स इन हिज पेन। उसकी तकलीफ में शायद उसे मजा आता हो, उसे खुशी मिलती हो, एंड इन दिस वे शी माइट लर्न द पोएट्स पेन। हो सकता है कम से कम इसी बहाने वो कवि के दर्द को, कवि के प्यार को समझ सकेगी। दर्द कौन सा है? दर्द है नॉट विनिंग हर लव। अभी तक अपनी महबूबा का प्यार फिलिप सिडनी हासिल नहीं कर पाए, ये दर्द वो ऐसे नहीं समझेगी, पर कम से कम कविता को पढ़ने के बाद तो समझ जाएगी, एंड इट वुड मेक हर हार्ट सॉफ्ट। हो सकता है उसका दिल बसीज जाए, नरम पड़ जाए, एंड शी माइट शो सिंपैथी फॉर द पोएट। वो कवि के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त करे, एंड thus the poet wants to win the heart of his lady, and in this way he wants to win the heart of his beloved, the pity grace obtain। हो सकता है दया आ जाए उसको, वो मेहरबानी कर दे और मैं उसका दिल हासिल कर लूं। प्लेजर माइट कॉज अ रीड। खुशी शायद उसको बाध्य कर दे पढ़ने के लिए। रीडिंग माइट मेक हर नो। शायद पढ़ के उसको खबर मिल जाए। नॉलेज माइट पीटी विन। हो सकता है इससे उसका दिल पसीज जाए, उसको दया आ जाए, एंड पीटी ग्रेस ऑब्टेन, एंड पोएट वांट्स टू विन हर हार्ट थ्रू दिस ऑल एफर्ट्स। आगे वो कहते हैं आई सॉट फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ। दर्द का चेहरा हमेशा कुरूप विद्रूप रहा है, पर बहुत सूटेबल, बहुत चुने हुए शब्दों को वो ढूंढ रहे हैं। स्टार्टिंग इन्वेंशंस फाइन हर विट्स टू एंटरटेन। The poet searches for appropriate words to depict the saddest face of him। अपने नाराज चेहरे को, अपने दुखी चेहरे को वो पोएम के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से अपने बिलीवर्ड के सामने सबसे बेहतर तरीके से वो अपने दुख को बताना चाहते, पर इसके लिए जरूरत है चुनिंदा शब्दों की, चुने हुए चोजन वर्ड्स की। आई सॉट फिट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स। कविता को लिखना, गजल को लिखना, शेर को लिखना इतना आसान काम नहीं होता। गजल के एक शेर को लिखने में लोगों की जान चली जाती है। इतना भी आसान नहीं होता कविताओं को लिखना, इसलिए एक प्रकार का तकलीफ वाला काम है। एंड द पोएट सर्चेस फॉर एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू डिपिक्ट द सैडेस्ट फेस ऑफ हिम, एंड स्टडिंग इन्वेंशंस फाइन। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद में, बहुत सारे पोएट्स को, पोएम्स को रेफर करने के बाद में उनको ये विश्वास हो जाता है। His brain seems to have become barren because of his passion of love। शिव प्यार के पीछे पागल है, और प्यार के पीछे ही घूमते रहने से उनके दिमाग में शायद बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज ना हो, एंड ही रियलाइजेस हिज इनएबिलिटी टू फाइंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस फॉर हिज लव। अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्दों का वो इंतजार कर रहे हैं, वो शब्द मिल नहीं पा रहे हैं। Actually, the poet wants to provide intellectual pleasure to his lady in love। वो अपनी प्यार को फिजिकल एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर देना चाहते हैं कि कम से कम इन लाइंस को पढ़ के उसे खुशी मिले, एंड कन्विंस हर थ्रू हिज वर्ड्स। और वो पर्पस एक ही है, टू विन हर हार्ट। I sought fit words. He is trying to find out suitable words to paint the blackest face of who. Whatever the sad feelings he has had in his mind, he wants to uh, express these all sad feelings through his suitable words, studying inventions fine, and her wits to entertain. And the purpose is to impress her intellectually। उसको प्रभावित करना है बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने फाइन आइडियाज के द्वारा फिलिप सिडनी को। Of turning others' leaves to see if hence would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain।
This effort will definitely help her to find some new ideas. The poet hopes others' writing might help him in the purpose of turning others' leaves. बाकी लोगों के पन्नों को पलटाते समय, यहाँ लीव्स का मतलब पेजेस ऑफ द पोएट्रीज, पोएम्स या बुक्स हो सकती है। और इन सारी किताबों को पलटने के बाद में हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। बाकी लोगों के कविताओं के माध्यम से मैं बेहद तरीन खूबसूरत शब्दों का चुनाव कर लूं। And so he studies many books of other poets in order to find suitable words to describe his feelings. And therefore, he is trying to refer the books of other poets so that the beautiful ideas, beautiful images, beautiful vocabulary he could find. And if he finds the appropriate words, some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain, there those would be like a fresh and fruitful showers. अगर ऐसे कुछ नए शब्द, नए अल्फाज, नई उपमाएं, नई प्रतिमाएं अगर मिल जाती है, तो सूरज की रोशनी में, सूरज की तपती धूप में जैसे जमीन बंजर हो जाती है, हो सकता है मेरे दिमाग के, मेरी आइडियाज के इस बंजर जमीन में कुछ नए आइडियाज के फूल खिलाए। एंड दिस विल हेल्प मी टू कन्वे माई इमोशंस एंड फीलिंग्स in a better manner, in a very impressive manner. But words came halting forth. पर शब्द ऐसे, ये जो आमद आती है, ये जो मेहरबानी होती है, ये मुफ्त में नहीं होती। ये अपने पॉज के साथ, अपने अंतराल के साथ, रुकावटों से ये शब्द आ रहे हैं। But words came halting forth, wanting invention stay. और लगता है कि नए शब्दों का, नए अल्फाजों का चुनाव करना पड़ेगा। इन्वेंशन की बात हो रही है, नए डिस्कवरीज की बात हो रही है। नेचर चाइल्ड fled step them steady blows. Here the poet shows that the poetic words and expressions do not come continuously. Words came halting forth. रुक रुक कर ये शब्द आ रहे हैं, और रुक रुक कर आ रहे हैं, इसका मतलब शब्दों का चुनाव करने के लिए कवि जो तड़प रहा है, ये शब्द अचानक नहीं आते। दे आर halting, वो रुक रुक कर आ रहे हैं। एंड पोएटिक इंस्पिरेशन इज नेचुरल प्रोडक्ट। कवि की अपनी प्रतिभा है, वो नैसर्गिक है एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टडी। पर दूसरों की किताबें पढ़कर, दूसरों के शब्द चुराकर कविताओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड नेचर चाइल्ड। इसलिए कविताओं को, शब्दों को नेचर चाइल्ड कहा गया है। सृष्टि की अपनी संतान है शब्द। हु इज टॉर्चर्ड बाय स्टडी। स्टडी करके दूसरों के शब्दों को चुराकर, दूसरों की प्रतिमाओं को, इमेजेस को चुराकर, इन नेचर्स चाइल्ड को, इन नैसर्गिक शब्दों को तकलीफ नहीं दी जा सकती द स्टेप मदर, किसी सौतेली माँ की तरह। इसलिए जरूरी है कि तारीफ तो करनी है, अपने बिलेवेड को कन्विंस तो करना है, उसको कन्वे तो करना है अपना मैसेज। पर ये बताते समय क्या आपके शब्द ओरिजिनल है, क्या आपकी भावनाएं उसी प्रकार से प्योर है, पाकिजगी से भरी है। और आगे वो कहते हैं, एंड अदर्स फीट स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर्स इन माय वे। जब भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, जब भी मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, अजनबी सा लगता है। एंड इवन द वर्ड्स विच आर सुटेबल फॉर अदर्स सीम स्ट्रेंज टू द पोएट। जिन शब्दों को मैं चुनकर तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ, वो अजनबी से लगते हैं, क्योंकि वो किसी और के शब्द है। दस ग्रेट विद चाइल्ड टू स्पीक एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोस। दूसरों के शब्दों की मदद से मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नाउ द पोएट इज लाइक अ हेल्पलेस चाइल्ड। अब उस हताश बच्चे की तरह वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, who cannot able to express his pain during the time of delivery. जन्म लेते समय बच्चे जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसी प्रकार से कविता का जन्म होते समय, गजल को, शायरी को लिखते समय वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोस द पोएट इज फीलिंग एंग्विश टू एक्सप्रेस हिज पैशन। अपनी भावनाओं को, अपने दिल की बात को वो बताने के लिए परेशानी महसूस कर रहे हैं। एंड बाइटिंग माई ट्रॉन पेन। ट्रॉन का मतलब होता है जो ऐसे बच्चे जो स्कूल से भागकर बिना परमिशन के भाग जाते हैं, परेशान होते हैं शायद। पर एक ट्रॉन्ट की तरह मैं पेन चबा रहा हूँ।
कलम को चबा रहा हूँ एंड बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, अपने आप को कोस भी रहा हूँ। फुल सेड माई म्यूज टू मी, जब कविता की देवता मेरे सामने आई उसने कहा, मूर्ख हो, लुक इन द हार्ट एंड राइट। शब्दों के बेहतरीन चुनाव के लिए तुम इधर उधर क्या तलाश कर रहे हो, अपने दिल में झांको और फिर देखो कैसे बेहतरीन शब्द तुम्हें मिलते हैं। जब तक दिल में अपनी अंतरात्मा में ऐसे शब्दों का अपने रूह से ताल्लुक नहीं होगा, वहां पर वो हलचल नहीं मचेगी, बेहतरीन शायरी का लिखा जाना नामुमकिन है। द पोइट्स पेन इज लाइक ए टॉन्ट, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं उस टॉन्ट बच्चे की तरह वो पेन को चबा रहे हैं। एंड द पेन रन्स अवे ड्यू टू द लैक ऑफ हिज पोएटिक इंस्पिरेशन, कवि की अपनी प्रतिभा कम पड़ रही है शब्दों के चुनाव में, इसलिए शब्द भी उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। एंड बीइंग होपलेस ही इज बाइटिंग हिज पेन, जब निराश है, अच्छे शब्दों को नहीं हासिल कर पा रहे तो वो निराश हो गए हैं, कोई भी उम्मीद उनके पास नहीं रही है। एंड एट द सेम टाइम ही बीट्स हिमसेल्फ इन एंगर, गुस्से से अपने आप को कोसते हैं। पर अंत में कविता की देवता काव्य की म्यूजिस जो है, हिज गॉडेस कॉल्स हिम फूल, वो उन्हें मूर्ख कहती है और सलाह देती है हिम टू यूज हिज ओन वर्ड्स, और वो सलाह भी देती है कि वो म्यूजिस आकर उससे कहती है कि अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, यूज योर ओन वर्ड्स फ्रॉम हिज हार्ट टू राइट पोएट्री, तुम्हारे दिल से जो शब्द अल्फाज आएंगे अपने दिल के सुनो, उन शब्दों का प्रयोग करो, ओनली देन इट वुड बी जेन्युइन एंड ओरिजिनल, तभी वो कविता तुम्हारी भावनाएं ओरिजिनल हो सकती है। ये सिर्फ अपने महबूब के सामने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, सिंसियर लव को एक्सप्रेस, सच्चे प्यार को बयां करने के लिए सिर्फ फिलिप सिडनी का प्रयास नहीं है। उनकी तकलीफों से गुजरना, उनका सिर्फ तकलीफों से गुजरना नहीं है, बल्कि कविता लिखने वाले, गजल लिखने वाले, शेर लिखने वाले कई सारे कवियों को भी आह्वान है कि जब तक शब्द दिल से नहीं आएंगे आप दिल की बात को कह नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक गाइडलाइन भी है, ये एक एडवाइस भी है कवियों के लिए भी और रीडर्स के लिए भी। Let's hope that this discussion will help you to understand this sonnet for the examination point of view. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod, and thank you very much for watching this video.